everyone, I welcome you all in this new video of sets. Guys, this is the part 2 and here I'm going to discuss the exercise number 1.2 and 1.3 of your NCERT. Okay, so in firstly I will discuss 1.2, the theory of 1.2 and few questions of that, and after that we'll discuss 1.3 and their theory and their questions. Okay, so this chapter is very easy. We just go ahead step by step and we'll be able to understand every concept of sets. So मैं उम्मीद कर रही हूँ, आई होप दैट you have watched my last video where you got the basics of sets, that what set is, how it looks like, and here now we are going to discuss the few important and basic and new terminologies of sets. Okay, so guys, let's come to this video. Let's start this video. In 1.2 we will have three topics and we will discuss three topics in this video: empty sets, finite and infinite sets, and equal sets. Firstly we need to understand what these sets are. Okay, after that we will see the example of it. ठीक है, empty sets, as per the name suggest, empty, कुछ भी नहीं होना चाहिए, खाली, vacant. Okay, so the empty set is ऐसा कोई set, any set which is having no value. It means inside the bracket there is no element. Okay, so or as I can tell, the number of element inside any set is equals to 0. तो इस टाइप का सेट क्या होता है, आपका एम्प्टी सेट होता है. ठीक है, there will be no element, किसी सेट के अंदर में no element. This set is also known as void set. कैसा? void set, null set. ठीक है, एम्प्टी सेट तो आपने लिख ही लिया है. And it is represented by the empty bracket, empty curly bracket, and this signature phi, ये जो phi का जो साइन है, ये जो phi का जो साइन है, it is also represents null set. It is no any element, it is a set. It is what? It is a set. It is which set? Empty set. Okay, so guys, let's have an example. Here I have written one example for the empty set. The example is A is equals to x is such that x is a student studying in class 10th and 11th. Is it possible कि कोई एक बच्चा 10th में भी पढ़ता है और 11th में भी पढ़ता है? हाँ, ऐसा सपने में हो सकता है, but in the real life it cannot possible, right? It is not possible. ठीक है, तो आपका ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है, ये किस कैटेगरी में आएगा? क्या इसके अंदर में कोई एलिमेंट आएगा? नो, देयर कैन बी नो एलिमेंट. कोई भी एक बच्चा जो है वो क्लास 10th और 11 दोनों में एक साथ नहीं पढ़ सकता है. तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा नो एलिमेंट. इसका मतलब क्या, ये सेट कैसा है? Yes, it is an empty set. It is an example of empty set. Okay, let's have the finite and infinite sets. Finite, नाम पता चल जा रहा है, काउंटिंग हो सकती है, काउंटिंग पॉसिबल है, जिसकी पॉसिबल काउंटिंग होती है वो क्या होता है? फाइनाइट. डेफिनाइट कुछ नंबर होना चाहिए वहाँ पे. ठीक है, इनफाइनाइट. इनफाइनाइट कहने का मतलब है, देखो, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी जो हम यूज करते हैं, वी यूज दैट इन्फिनिटी फॉर वेरी बिग वैल्यूज, जिसको हम इधर इट इज अनकाउंटेबल भी नहीं बोलना चाहिए, बहुत ही बिग सा नंबर है जो कि मतलब नॉर्मल जिंदगी में इतनी गिनती हमारे पास में हम नहीं करते हैं. ठीक है, तो उसको जब बहुत बिग सा कोई नंबर होता है तो वी कंसीडर इट एज इन्फिनिटी. ठीक है, तो आपने देखा है यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है. इनफाइनाइट मतलब जो काउंट नहीं कर सकते हैं अपन, बहुत ज्यादा है अमाउंट में. ओके, दैट इज इनफाइनाइट सेट. Here I have taken examples. A is equals to 1 2 3 4 5. तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड A is 5. काउंटेबल है. ठीक है, मैंने 1 2 3 4 5 काउंट भी कर दिया है. तो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फाइनाइट सेट. ये कौन सा सेट है? इट इज फाइनाइट सेट. ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड एग्जांपल. इट इज फर्स्ट, इट इज सेकंड. बी में क्या लिखा हुआ है? x is such that x is the number of men living in the different parts of the world. ठीक है, वर्ल्ड जो है वो बहुत बड़ा है, अलग अलग कंट्री है, कॉन्टिनेंट्स है, लोग है वहाँ पे. तो वर्ल्ड में पूरे कितने टाइप के लोग हैं, पूरी काउंटिंग में आप बताओ, बोल रहा है वो. तो ये कोई बहुत बड़ी वैल्यू है. ये क्या है? कोई बहुत बड़ी वैल्यू है. तो ये कौन सा सेट होगा? ये होगा आपका इनफाइनाइट सेट. इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इनफाइनाइट सेट. ठीक है, अब क्या है गाइस, इक्वल सेट्स को देखते हैं अपन. इक्वल सेट्स में सपोज वी हैव टू सेट्स A एंड B, तो वो इक्वल कब होंगे मैं आपको बता देती हूँ. द बोथ सेट शुड हैव सेम नंबर्स, मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. लाइक 5 में है तो 5 उसमें भी होना चाहिए. ठीक है,
सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड उनकी जो वैल्यूज है, वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स शुड ऑल्सो बी सेम, वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है, ऑर्डर डजंट मैटर। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, सी ए में कितना लिखा हुआ है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स इनसाइड द ए, सेट ए। सेट बी में देयर इज 1 2 3 4, वहाँ भी 4 एलिमेंट्स हैं। अब मैच करवाते हैं, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे भी है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है, मतलब वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम। ओके, करेक्ट है, ठीक है। ऑर्डर डजंट मैटर, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे 1 आया है, यहाँ पे 3 आ गया है, यहाँ पे 2 ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 4 है, तो हमको ऑर्डर मैटर नहीं करता। ओके, सो ए एंड बी आर द इक्वल सेट। सो लेट्स हैव द क्वेश्चंस रिलेटेड टू empty sets, finite, infinite sets and equal sets. Let's have the questions. Guys, let's have the questions of 1.2. I have taken few questions so that you'll be able to understand the theoretical part which we have discussed, right? So the first question is from कि वो null set है कि नहीं हमको बताना है। The question number 1 is हम अपने डिस्कशन को बहुत ध्यान में रखेंगे जो हमने डिस्कस किया अभी कि null set क्या था, empty set, no element should be there, right? The first question is सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो देखिए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर में आप सोचिए कोई नंबर आता है क्या, 2 इज अ प्राइम नंबर एंड इट इज इवन ऑल्सो, इट मीन सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर में हाँ हमारे पास में एक नंबर है, तो क्या ये एम्प्टी सेट हो सकता है? बिल्कुल नहीं, दिस इज नॉट अ नल सेट, दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, y is such that y is a point common to two parallel lines. Suppose guys this is a line, it and one more line is parallel to this line, line 1 and line 2. तो मुझे बताओ, is there any point between two parallel lines? No, there is no point. It means अगर मैं इसकी बात करूँ सेकंड वाले क्वेश्चन की और सोचूं कि क्या उसमें ऐसा कोई एलिमेंट आ सकता है, ऐसा कोई पॉइंट आ सकता है जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में हो, नहीं, कोई पॉइंट नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि देयर इज नो एलिमेंट, मतलब ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, यस इट इज अ नल सेट। जो सेकंड वाला नल सेट है, ये वाला नल सेट नहीं है ऊपर वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को लेकर के हमको डिस्कस करना है। द सेट ऑफ अ मंथ ऑफ अ ईयर, द सेट ऑफ अ मंथ ऑफ अ ईयर, द सेट ऑफ मंथ्स होना चाहिए, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो देयर इज 12 मंथ्स, राइट, जनवरी टू दिसंबर, फाइनाइट है, 12 नंबर्स है। ओके, मतलब अपन जब इसका सेट बनाएंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च अप टू दिसंबर, तो इफ यू विल काउंट यू विल फाइंड 12 वैल्यूज आर देयर, सो इट कम्स अंडर फाइनाइट सेट। Okay, now the second question, set of circles passing through origin, set of circle passing through origin। तो guys अगर मैं सर्कल बनाना चालू करूँ, ये मेरा ओरिजिन है, तो मैं ऐसे छोटा सर्कल भी बना सकती हूँ, फिर बड़ा सर्कल भी बना सकती हूँ और छोटा बना सकती हूँ, which can passes through origin. It means I can take any circle of any radius, right? So I can draw many circles which can passes through the origin. So I hope that this question comes under the infinite set. So I'm taking infinite sets. Okay. Now the third question. The set A is X is such that X is a letter in the word follow. देखो. And B is Y is such that Y is a letter in the word wolf. मुझे पूछा है कि ये इक्वल है या नहीं इक्वल है। Guys, one more thing जो मैंने आपको इक्वल सेट में नहीं बताया था, जो यहाँ पे देखने से मेरे को समझ में आ गया। देखो, जब आप इसको ए को लिखोगे तो ए कैसे दिखाई देगा आपको, ऐसा ना, फॉलो, ठीक है, एंड बी इज नथिंग बट वॉल्फ, ठीक है। जब भी हम सेट को राइट करते हैं तो ये जो रिपीटेड स्पेलिंग्स लिखी हुई है ना, या रिपीटेड लेटर्स या एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, रिपीटेशन डजंट मैटर। आप 100 बार लिख दीजिए एक सेट के अंदर में, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ है कि ए के अंदर में वी हैव ओनली 4 लेटर्स, एफ है, ओ है, एल है और डब्ल्यू है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या क्या है, एफ है, ओ है, एल है और डब्ल्यू है, एंड चेक हियर WOLF, ठीक है। तो दोनों में क्या है, सेम एलिमेंट है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी है, क्योंकि आपका रिपीटेशन मैटर नहीं करता है। तो यहाँ भी 4 एलिमेंट्स है, यहाँ भी 4 एलिमेंट्स है, तो इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इक्वल सेट, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के साथ में हमने 1.2 के कुछ थ्योरी को डिस्कस किया है, एम्प्टी सेट,
finite, infinite set, and equal and not equal sets. Let's come to the brief theory of 1.3. So guys, let's discuss the theory and question and answers of 1.3. One by one we'll discuss all the topic of 1.3 and question related to it. So पहला है subsets, दूसरा है subsets of sets of real number, the third one is intervals, power set, universal sets. ठीक है, इतनी चीज़ें हमको पढ़नी है inside 1.3. So guys, we'll discuss it one by one. सबसे पहला आएगा subsets. ठीक है, अब subsets क्या होता है? सपोज करना आई हैव ए एज 1 2 3 4 5 एंड देयर इज बी इन विच द एलिमेंट्स आर ओनली 1 and 2. ठीक है, तो सबसेट्स क्या होते हैं? एक किसी बड़े सेट का कोई ऐसा छोटा सा सेट, कोई ऐसा छोटा सा पार्ट, जैसे बी में देखिए आप 1 and 2 है. ठीक है, तो बी जो है, बी के जितने भी एलिमेंट्स है वो कहाँ प्रेजेंट है? ए में प्रेजेंट है. आप देखिए बी में जितने भी एलिमेंट्स है वो कहाँ प्रेजेंट है? ए में प्रेजेंट है. तो ए का एक छोटा सेट, ए में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसके एक एलिमेंट को लेकर के दो एलिमेंट को 3 4 उससे कम एलिमेंट वाला होना चाहिए. ठीक है, सो आई कैन राइट दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए. इट इज अ सिंबल ऑफ सबसेट. इट इज अ सिंबल ऑफ सबसेट. ठीक है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए. ठीक है, तो ये छोटा वाला जो सेट होता है ना, इसके जितने भी एलिमेंट्स है वो अपने ए वाले सेट में, या वो भी जो उसके ऊपर वाला सेट है उसमें क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. इसको आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे. एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. ओके ओके, तो आपको ये सबसेट समझ में आ गया है. अभी क्वेश्चंस भी लगाएंगे, समझ में आएगा. नाउ सबसेट्स ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर. ठीक है, दिस एन रिप्रेजेंट्स नेचुरल नंबर. कैसा दिखता है? 1 2 3 4 5 ऐसा आगे बढ़ेगा. ठीक है, z इज नथिंग बट व्हाट? इंटीजर्स. इंटीजर्स कैसे होते हैं? पूरे इधर नेगेटिव वैल्यू -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसा होगा. ये 0 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, आएगा. एंड Q इज वॉट? रैशनल नंबर. R इज वॉट? रियल नंबर. ये क्या है? इरैशनल नंबर. ठीक है, Q इज वॉट? रैशनल नंबर. रैशनल मतलब क्या होता है? P by Q. P Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए. ठीक है, P and Q belongs to Z and Q does not belongs, Q should not be equals to what? 0. ये होगा रैशनल. रियल नंबर तो इस दुनिया में, इस देश में जितने भी नंबर है सारे रियल नंबर्स. ठीक है, इरैशनल नंबर्स which cannot be represented in the form of p by q. ठीक है, ये √3 √2 ये सब जो वैल्यूज है, ठीक है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर्स हैं. ठीक है, तो इनमें कैसा होता है? लाइक आई कैन टेल यू कि कौन किसका सबसेट है. तो आप ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा, n इज अ सबसेट ऑफ z, z इज अ सबसेट ऑफ q. n इज अ सबसेट ऑफ z एंड z इज अ सबसेट ऑफ q. हाउ? n में देखिए सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है 1 2 3 4 5. ठीक है, तो इसका बड़ा वाला जो सेट है वो z है, द बिगर सेट विद रिस्पेक्ट टू n. सो इफ आई कंपेयर these two values, these two sets I mean, so whatever the elements are written over here, few of them is inside n, is inside natural number. That's why I can tell that natural number is a subset of what? Integers. Similarly, we can conclude that z is a subset of rational number. Okay. नाउ इंटरवल्स. इंटरवल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा. व्हाट इंटरवल्स इज, व्हाट इंटरवल्स आर. ठीक है, इंटरवल्स कितने टाइप के होते हैं सब अभी आपको सिखा रहे हैं. इंटरवल्स कहने का मतलब है जब भी हम किसी वैल्यू को डिफाइन करते हैं तो वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है. सपोज मैंने लिखा x बिलोंग्स टू 0 -1. ठीक है, कभी आपने इस तरीके की वैल्यू देखी होगी, x बिलोंग्स टू 0 -1. बिलोंग्स टू आप लोगों को पता है, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था. ठीक है, तो ये x की वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम क्या हो सकती है? -1 हो सकती है. रेंज वो रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंटेशन कैन बी डन बाय 4 टाइप्स. मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे. ठीक है, इंटरवल सब समझिए. ठीक, इसके सबके डेफिनेशंस आपके बुक में गिवन है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू व्हाट दिस इंटरवल्स आर. मैंने यहाँ पे बनाया, अगर हमारे पास में टोटल 4 टाइप्स है, 1 2 3 एंड 4. रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ पहले ब्रैकेट्स के फॉर्म में. ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे
इसको बोलते हैं, जो बिग ब्रैकेट दिख रहा है दिस इज नोन एज क्लोज इंटरवल, दिस इज नोन एज क्लोज इंटरवल। और ऐसा हो सकता है ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स है दिस इज नोन एज ओपन इंटरवल। मे बी लाइकवाइज कि एक तरफ क्लोज और एक तरफ क्या हो, ओपन हो। एंड व्हाट एल्स, एक तरफ ओपन और दूसरी तरफ क्या हो, क्लोज हो। द बिग ब्रैकेट इज नोन एज क्लोज इंटरवल एंड द ओपन ब्रैकेट्स आर नोन एज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्लोज कहने का मतलब है वहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज इंक्लूडेड वैल्यू, और जो ओपन है वहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज एक्सक्लूडेड वैल्यू, है ना, इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड। ठीक है, जैसे सपोज ये x के लिए अपन ने ये ब्रैकेट्स बनाए हैं एंड सपोज आई हैव रिटन 1,2 here, 1,2 here, 1,2 here, 1,2 here. So how can I represent these values? This value can be represent, ये वाली वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट होगी मैं आपको दिखा रही हूँ। This value can be represented by 1 is greater than equals to x is 1 is greater than equals to x and less than equals to 2. X is greater than equals to 1 and less than equals to 2, ये करेक्ट हुआ। X is greater than equals to 1 and less than equals to 2। ठीक है, तो ये जो बिग ब्रैकेट है इसमें ये लेस देन ग्रेटर देन जो भी साइन है उसके साथ में एक इक्वल टू भी यूज होता है। ठीक है, विच इंडिकेट्स इंक्लूडेड वैल्यू। ठीक है, तो ये हुआ आपका ये वाला इंटरवल, फर्स्ट वाला। अब देखिए जब दोनों में ओपन है, अगर मैं इसको छोड़ के इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो आई विल इरेज दिस इक्वल्स टू, क्योंकि मैंने बोला था ओपन इंटरवल इंडिकेट्स एक्सक्लूडेड वैल्यू। ठीक है, this x is greater than 1 and less than 2. x cannot be 1, cannot be 2. in the previous case x जो है 1 से greater भी था और 1 के equal भी था, 2 से less भी था और 2 के equal भी था। but यहाँ पे in the second case x जो है 1 से बड़ा है and 2 से small है, but it cannot be is equals to 1, cannot be equals to 2. ठीक है, in the third case you can see, if I will tell the third case, you can see there is a big bracket, close interval. I need to write 1 equals to over here. It means x is greater than equals to 1 and less than 2. It means कि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है और 1 के इक्वल भी है, 1 इंक्लूडेड है, x कैन बी इक्वल्स टू 1 बट इट इज लेस देन 2, इट कैन नॉट बी इक्वल्स टू 2. ठीक है, द लास्ट वन, अब यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ पे ये लगेगा x is greater than 1 and less than and equals to 2, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी है बट 2 से स्मॉल है एंड 2 के इक्वल भी है। ठीक है, तो ये हुआ आपका ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन एंड लाइक लेस देन इक्वल्स टू वाला रिप्रेजेंटेशन। इसको हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। गाइज इसको आप ध्यान से समझना, अगर ये मेरा नंबर लाइन है तो क्लोज इंटरवल को हम हमेशा बोल्ड सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे एंड या क्लोज सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे डार्क सर्कल से, और ये हुआ क्लोज इंटरवल एंड ये क्या हुआ ओपन इंटरवल। ठीक है, कि एक डार्क बबल है और ये क्या है एक ओपन बबल है, मतलब जिसमें कोई कलर नहीं हुआ है। ठीक है, सपोज आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस वैल्यू इन द नंबर लाइन, you can see x is greater than equals to 1 and less than equals to 2, मतलब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, 2 से लेस है और equals to 1 भी और equals to 2 भी है। तो आप यहाँ पे क्लोज बनाएंगे, आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे भी क्लोज बनाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, कि x की वैल्यू जो है वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है एंड इन दोनों के बीच की भी सारी वैल्यूज हो सकती है। ओके, बट अगर यही कंडीशन चेंज होके ऐसी हो जाए, समझना ऐसी हो जाए तो क्या होगा, x is greater than 1, it is not equals to 1, so this bubble will change, this will be like this and the number line will look like this. x is greater than 1, देखो जहाँ पे डार्क है सब कुछ वो वाली वैल्यू इसको रिप्रेजेंट करती है, and it is less than 2 and it is equals to 2. ठीक है, likewise you can draw all the intervals which I have been discussed right now, right? सो आई हैव वन क्वेश्चन ओवर हियर, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ थ्योरी के साथ साथ ही मैंने क्वेश्चन ले लिया सो दैट आपको इजी पड़े समझने में। क्वेश्चन इज x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आपको ये बोला हुआ है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहले नंबर लाइन में करते हैं। नंबर लाइन में सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 4 और यहाँ पे क्या लिखा मैंने -4 और यहाँ पे क्या लिखा 6, तो x की वैल्यू देखिए यहाँ पे इक्वल्स टू है क्या नहीं है, तो ये क्या होगा, ये ओपन सर्कल बनेगा, यहाँ पे इक्वल्स टू है, यहाँ पे क्लोज सर्कल बनेगा एंड यहाँ भी ये डार्क लाइन बनेगी। ठीक है, ये हुआ इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन।
ठीक है. एंड ऑल्सो आई कैन राइट x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -4 6 क्लोज ब्रैकेट, बिकॉज जहाँ पे इक्वल्स टू साथ में आता है वहाँ पे अपने को क्लोज इंटरवल यूज करना होता है, क्लोज ब्रैकेट यूज करना होता है. ठीक है. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आइदर द क्वेश्चन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर लाइन और कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ओपन एंड क्लोज इंटरवल्स. ठीक है. सो लेट्स हैव द सेकंड क्वेश्चन. ओके, सेकंड क्वेश्चन नहीं है, अभी हम अपने को समझना है पावर सेट्स. ठीक है, ध्यान से समझिए. पावर सेट्स, all possible subsets are known as power set of any set. Okay, all possible subsets. ठीक है. अब देखिए कैसे मेरे को लिखा हुआ है a, b, एक ये सेट लिखा है, मेरे को बोला राइट ऑल सबसेट्स. यही जो ऑल सबसेट्स हैं वो उसके पावर सेट होंगे. इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पे करते हैं a, b. ओके, सपोज द क्वेश्चन इज राइट द पावर सेट ऑफ दिस सेट. ठीक है. सो दिस विल बी a, b. ठीक है. एक ये सेट बना इसका सबसेट, एक ये सबसेट बना. मैंने बोला था एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. यहाँ पे लिखा था एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. One more thing which is very important, I want to tell you that phi or null set is also subset of all the sets. Is also subsets of all the sets. Very important. So you can count the all possible subsets. How many sets are there? Subsets are there 1, 2, 3 and 4. Okay. So कितने subsets बने? 4 subsets बने. तो उस set का power set कितना हुआ? 4. ठीक है. तो अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पे कितने इसके कितने और पॉसिबल सबसेट्स हैं, तो कितने हैं? 4 है. तो इसका पावर सेट कितना हो गया? 4 हो गया. कैसे और समझते हैं? पावर सेट्स को अपन देखते हैं 2 to the power number of element in any set. 2 to the power number of element in any set is equals to power sets. देखो इस क्वेश्चन में क्या we have how many elements in set A? 2 elements. How many elements? 2 elements. So the power set is equals to 2 to the power 2 is equals to 4. You can count it 1, 2, 3, 4. ठीक है. You can take other examples. You can verify whatever I have been told over here. ठीक है. तो ये हुआ आपका पावर सेट्स, ऑल पॉसिबल सबसेट्स. उसकी काउंटिंग होगी, जितने भी नंबर्स आएंगे वो क्या होगा? उसका पावर सेट होगा. लेट्स कम टू यूनिवर्सल सेट. गाइस देखिए, यूनिवर्सल सेट किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए गिवन रहता है. In any question, the biggest number or the bigger set will be the universal set. जब भी क्वेश्चन में आएगा तो यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होगा. उसके नीचे नीचे में बहुत सारी चीज़ें बनी होंगी. सपोज करते हैं यूनिवर्सल सेट को हमेशा कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज इट इज़ 1, 2, 3 अप टू 30, है ना. एक ही कोई बिग सा सेट है ना. या मैंने यहाँ पे लिखा A इज़ 1 to up to 10 एंड B मैंने लिखा 11 to 20. तो आई कैन से दैट A इज अ सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट. ठीक है. तो यूनिवर्सल सेट जो होता है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का होगा, एक बड़ा सा सेट होगा, उसको अपन यूनिवर्सल सेट बोलते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर सेट के लिए, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. ठीक है. अब कुछ क्वेश्चन अपने को यहाँ पे और दिए हुए हैं. मेरे को बोला है कि यहाँ पे सबसेट या सेट का साइन लगाना है 2, 3, 4. अब देखो ये 2, 3, 4 यहाँ पे है, 2, 3, 4 यहाँ पे भी है. सो आई कैन पुट द साइन सबसेट 2, 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ 1, 2, 3, 4. ऐसा तो नहीं लगेगा ना? नहीं लग सकता है, वैसा नहीं लगता है ना. ऐसा ही लगेगा. क्यों? क्योंकि ये छोटी वैल्यूज है ना, यहाँ पे देखो काफी सारे नंबर है. सो दिस इज द सबसेट ऑफ दिस सेट. गेट इट? नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज अगेन आई नीड टू पुट सबसेट और सेट. x इज सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर. इवन नेचुरल नंबर है 2, 4, 6 टाइप का. एंड x इज सच दैट x इज एन इंटीजर. इधर पे सारे इंटीजर्स हैं. तो क्या इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा? इवन नेचुरल नंबर्स में 2, 4, 6, 8 सारे आएंगे और इसमें तो पूरे माइनस प्लस सारे इंटीजर्स आएंगे. तो डेफिनेटली इट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट. ओके. द थर्ड क्वेश्चन इज A, B इज नॉट अ सबसेट ऑफ BCA. इज इट ट्रू और फॉल्स? यार देखो यहाँ पे A था, यहाँ B था और यहाँ भी A है, यहाँ भी B है. तो सीधी सी बात है ये सेट है. मतलब ये जो स्टेटमेंट जो सबसेट है, ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये इनकरेक्ट है. मतलब अपन यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम टिक करेंगे किसको? फॉल्स को. ठीक. सो from here with this explanation I have covered the all concepts and questions of 1.3. Now what is your duty? Your duty is to solve
exercise 1.2 and 1.3. And if you will have any doubt, do comment, or you can mail me in my email id. मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई हैव गिवन माई email id, तो आप वहाँ पे जा करके अपने सारे डाउट्स, सारी क्वेरीज आप में से पूछ सकते हैं. सो गाइज, आज के लिए इतना ही. हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 1.4, 1.5, 1.6 के कंसेप्ट के साथ में. आगे आने वाले एक्सरसाइजेस और इंटरेस्टिंग होते जाएंगे. ठीक है, काफ़ी अच्छा सिंपल लॉजिक एंड बहुत नया नया चीज़ सीखने को है इस चैप्टर में. सो अभी के लिए तो थैंक यू, और वॉच माई वीडियो, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो as much as you can. So thank you guys. We'll meet in the next video with 1.4 onwards. Thank you guys. Do like and share my video and subscribe to my channel.